Hello everyone. So we are starting with the template series for GS3. So basically what we figured out in GS3 is that writing more points helps to get good marks. So I am Animesh Jain, my rank is 63 this year and my GS3 score was 98, which is comparatively good as compared to what has been the average score among the rankers also this year. है ना, काफी लोगों के their marks were stuck in 80s, early 90s and even 70s. That sense, like 98 was a good score. And in retrospect, also in the last few years, after analyzing topper copies, also one thing which I have figured out is that in GS3, if you tend to write more number of points, you tend to get more marks in the answer. ये simple approach मुझे समझ में आया लास्ट 3-4 years में टॉपर कॉपीज एनालाइज करने के बाद. ये सेम अप्रोच जो है मैंने अपने GS3 आंसर्स में भी इंप्लीमेंट किया था. That's why I think there was this jump in the marks in GS. So the problem arises, how do we generate more points? देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ लिखना स्टार्ट करें, लिखते लिखते आपको आ जाए. You should have some key frameworks ready. You should have some generic points ready for each and every topic. It can help you write more number of points. So I will show you my own template in this session. So this is the internal security. Similarly, we will do for the other sections also. तो कुछ जेनरिक पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम लोग किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं. मान के चलिए यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है. तो हियर देयर आर ओनली फ्यू क्वेश्चन व्हिच यूपीएससी आस्क इन जनरल. वन कैन बी जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, एलडब्ल्यूई, साइबर और टेररिज्म. तो ये 5-6 ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं. अब इन क्वेश्चंस में भी आइदर दे आस्क व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट should be the way forward, or what step has the government been taking in the recent times. तो ये 4 ब्रॉड डायमेंशंस में यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि we can make a fixed template for each of this dimension and can apply that template as per the question. अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कॉजेस की, कि what can be the cause for any kind of insurgency, be it LWE, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उसके कॉजेस क्या होते हैं. तो देयर आर दीज पॉइंट्स व्हिच आई हैव जनरेटेड. यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर 20 पॉइंट्स. अब ये ऐसे जेनरिक पॉइंट्स हैं जो आप किसी भी आंसर में फिट कर सकते हैं. दे आर इक्वली वैलिड फॉर ऑल द आंसर्स. तो अगर आपने एक बार 20 पॉइंट रख लिए तो आपको अलग अलग पॉइंट रखने की नीड नहीं पड़ेगी फॉर डिफरेंट टॉपिक. ठीक है, दैट इज द मेन आइडिया. एंड यू जस्ट नीड टू चेंज द एग्जाम्पल, द डेटा पॉइंट्स विच यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ दीज पॉइंट. तो खाली वो आपका जो है कंटेक्स्ट चेंज होगा एज पर जम्मू एंड कश्मीर, एज पर द क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट. तो आपको इसके आगे का पॉइंट चेंज करना है. ठीक है, आपका जो की हेड है, जो आपका बुलेट पॉइंट है, वो सेम ही रहने वाला है. दैट इज द आइडिया. तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें व्हाट पॉइंट्स आई हैव रिटन. ठीक है, तो सो हियर द हेड इज कॉजेस फॉर एनी काइंड ऑफ इंसर्जेंसी व्हिच इज देयर. तो कॉजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी. तो वन कॉज कैन बी हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस. तो फॉर एग्जांपल द कम्युनिटी सी देमसेल्फ एज अ सेपरेट नेशन. नेशनल आइडेंटिटी सेपरेट हो सकती है. या आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में, so many of these ethnic groups they see themselves as a separate nation and that's why they have been demanding independence. Other cause can be geographical diversity, location. Diversity again, ethnic diversity हो सकती है, linguistic diversity हो सकती है. Location can also play a role. Most of the insurgency which we see is along the border areas because जो है वहाँ पे porous borders हैं, cross country support हो सकता है. That for those reasons it becomes very easy. ठीक है, third point we can write which is basically a subcomponent of this point only is proximity to your golden crescent and golden triangle. So I hope you know what are golden crescent and golden triangle. ठीक है, next could be that the borders could be porous, unfenced, open. Rugged terrain हो सकती है, inaccessible terrain. For example, in your left-wing extremism, one of the challenge has been rugged terrain. Now why we are not able to eliminate LWE. ठीक है, then we can talk about economic causes. तो उसमें unemployment and poverty could be a cause. ठीक है, लैंड एक्विजिशन इश्यूज. फॉर एग्जांपल द फाइट ऑफ ट्राइबल्स इन एलडब्ल्यू हैज बीन ओवर द डिस्प्लेसमेंट. जल जंगल जमीन जो हम लोग बोलते हैं, तो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं. जल जंगल जमीन इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, वन ऑफ द कॉज ऑलवेज इज लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. जहाँ पे पॉवर्टी होती है, इनइक्वालिटी होती है, इट इज वेरी इजी टू कन्विंस पीपल टू फाइट बैक अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट हो सकता है इन द अफेक्टेड रीजन. नेक्स्ट इफ वी सी कैन बी political points. So demographic change could be a reason. So again, in the northeast we see the migration of Bangladeshis that is leading to local resentment among the people. तो अगर आप देखें तो असम में 1980s में आंसू का जो मूवमेंट हुआ था,
All Assam Student Union, that was initially against the migrating people who were coming in India from Bangladesh. So demographic change could be a cause. Poor political representation would also be a cause. And they might feel that they are not being represented at the state level or at the national level policy making. मल्टी एथनिसिटी टेंशन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा था मणिपुर में दिस मीती वर्सेस कुकी इशू. ठीक है, कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी जो है डायमेंशन आपका हो सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग LWE स्टडी करते हैं, वी ऑलवेज रेड दिस थिंग दैट इन बिहार फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लाइक बिहार, झारखंड एटसेट्रा, वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ LWE was the issue of caste. The lower caste people actually joined LWE because they were being discriminated by the लैंड ओनिंग क्लास या फिर दी अपर कास्ट देयर. इस वे में जो है कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कैन आल्सो प्ले देयर ओन पार्ट. लैक ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब्स, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट डेफिसिट, पुअर implementation of laws. This also we can talk about. For example, Forest Rights Act, PESA, 5th and 6th schedule. सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन गैप्स हो सकते हैं जिस कारण से अगेन डेवलपमेंटल एक्टिविटी, सिक्योरिटी बेस्ड मेजर्स आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली. ठीक है, इल ट्रेन पुलिस फोर्सेस हो सकती है, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अंडर आफ्सपा, व्हिच कैन अगेन लीड टू मोर रिजेंटमेंट अमंग द पीपल. एंड देयर कैन आल्सो बी द एक्सटर्नल एंगल, फॉर एग्जांपल सपोर्ट बाय चाइना, सपोर्ट बाय पाकिस्तान, सपोर्ट बाय द माओइस्ट पार्टीज इन अदर कंट्रीज लाइक नेपाल. एंड देयर कैन आल्सो बी रोल ऑफ ग्लोबल जिहाद एंड ग्लोबल टेररिज्म इन दिस. तो अगर आप देखिए ये जो 20 पॉइंट हैं, दिस कैन डायरेक्टली हेल्प अस इन राइटिंग आंसर. इफ वी सी बाय एग्जांपल, what are the driving factors of northeast insurgency? मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आता है, दिस इज अ सब कॉम्पोनेंट, आपको बताना है फैक्टर्स क्या है. आप देखिए, आप एग्जैक्टली सेम पॉइंट फिट इन कर सकते हैं. We can talk about this point, historical, that many of these ethnic groups consider themselves to be a separate national identity. Geographical diversity and location, we can say their location along the porous borders, difficult terrain. गोल्डन जो है आपका ट्रायंगल आ जाता है यहाँ पे along the म्यांमार बॉर्डर. ठीक है, porous and fenced border है बांग्लादेश. Northeast insurgents, they can migrate and they can cross over the border. So it became very difficult for the security agencies to pursue them. Unfenced, that's why we are doing the fencing of your now Myanmar border. We are ending the free movement regime there. Okay, wrecked terrain, this point is also important link there. Unemployment and poverty, we can say in Northeast. Land acquisition inequality, again we can link. Jal Jangal Jameen issue, we can link. Inclusive growth, we can link. Infra deficit, नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा है, अगेन वी कैन लिंक दिस. What else? We see demographic change, definitely, and because of the migration by Bangladeshis. This point can also be there. Poor political representation, again yes. So if we see in our national parliament, there is a very poor representation of the northeast. Multi-ethnic tension is there. ठीक है, ये पॉइंट शायद उतना वैलिड ना हो. लैक ऑफ हेल्थ केयर एजुकेशन इज देयर, गवर्नेंस डेफिसिट इज देयर, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, डेफिनेटली. तो जो है आपका 6th शेड्यूल है इन द नॉर्थ ईस्ट, इट इज नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड. सेंटर स्टेट गैप्स हैं, एंड वी कैन से देयर हैव बीन ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन अंडर द आफ्सपा. So again, this point can be there, and we can always say that many of these groups have been supported by Pakistan or China nexus. So this point can also be there. This is just one of the example, and we have tried to apply the generic points which we have seen just now into the specific question which we have seen, that is the drivers in the factors for the northeast insurgency. तो ऐसे ही आप देखेंगे, अगर आप ये सेम टेम्पलेट अप्लाई करेंगे LWE में, वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर में भी काफी पॉइंट्स यहाँ से अप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि सारे पॉइंट्स अप्लाई हों, बट अगर हम लोग ये 20 पॉइंट्स में से 15 पॉइंट भी अप्लाई कर पाते हैं, तो जो है आप अच्छे से उस पार्ट को हैंडल कर सकते हैं. यू कैन राइट मल्टीपल पॉइंट्स फ्रॉम देयर. So this is the first part. We have seen the causes. Second template here could be that we can break our answer among the stakeholders. So who can be the stakeholder in any insurgency or any internal security problem? Individual citizens, governments, center, state, local bodies, the national bodies like FATF, Interpol, UN, civil society, NGO, SHG, youths, media, forces, foreign countries, both friendly as well as hostile, private sector, tech companies, academic and research institutions. So these can be the stakeholders in any answer. अभी ये टेम्पलेट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि देयर हैव बीन इंक्रीजिंग केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स इन अवर कंट्री.
So what steps should government take to tackle the issue of cybercrime? Steps for, let's say, tackling cyber crime. मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, तो आप देखिए इसमें से कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे लग सकते हैं. फर्स्ट वी कैन से that at the individual level, we need to generate more awareness. There should be cyber hygiene so that citizens are more aware about protecting their own data. That can be the first point. At the governmental level, we can say no need for collaboration between center and state governments. Reforms in the cyber policy. हमारे जो लॉज वगैरह हैं उसमें रिफॉर्म्स लेके लाना चाहिए. जो गवर्नमेंट लेवल पे तो लॉज हो गया. सेकेंडली वी कैन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका सर्ट होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये जो इंस्टीट्यूशन है इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, मैन पावर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना चाहिए, यूज ऑफ एआई करना चाहिए वगैरह वगैरह. तो दीज पॉइंट्स कैन बी देयर. वी कैन से दैट साइबर क्राइम इज अ बॉर्डरलेस बेसिकली फिनोमेना. तो वी ऑल्सो नीड ग्लोबल लेवल कोऑर्डिनेशन. तो आप बोल सकते हैं रोल ऑफ इंटरपोल, एफएटीएफ वगैरह, या फिर जो यूएन लेवल पे भी है, यूएन के लेवल पे भी वी नीड टू कोऑर्डिनेट अमंग द वेरियस कंट्रीज ऑन दिस इशू. We can talk about importance of civil society. So many of these NGOs या फिर जो bodies हैं which are working the cyber domain, they need to be brought on board. Role of media for awareness generation. है ना, फोर्सेस की हम लोग बात कर सकते हैं कि what all steps government is taking and what we can take. So for example, पुलिस के लेवल पे there is a need to strengthen your cyber capabilities. ताकि हम लोग जो है फास्टर वे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको हम लोग बुक कर सकें. तो आगे कुछ पॉइंट हो सकते हैं कि फॉरेन कंट्री, तो मान लीजिए देयर इज साइबर वॉरफेयर फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना, तो वी कैन से दैट टू टैकल दैट वी आल्सो नीड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, कि हम भी जो है साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज डेवलप करें. तो सच स्टेप्स कैन बी रिकमेंडेड. प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना चाहिए हमें, कि प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे आप बता सकते हैं देयर सिस्टम्स दे नीड टू बी मेड मोर रोबस्ट अगेंस्ट अटैक बाय साइबर वॉरफेयर या फिर साइबर अटैक्स. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वी नीड टू इम्प्रूव बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम लोग बात कर सकते हैं. टेक कंपनीज, जो आपके सोशल मीडिया कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, दैट देयर प्लेटफॉर्म शुड नॉट बी मिसयूज्ड टू परपेचुएट साइबर क्राइम्स. फॉर एग्जांपल, आप बता सकते हैं यहाँ पे रोल ऑफ कंपनीज लाइक ट्विटर, लेट्स से, या व्हाट्सएप. These social media sites, they play a big role in spread of, let's say, rumors which might lead to criminal violence. So now this spreading rumor part is a cyber crime. Similarly, there can be let's say nudity which is being promoted, child nudity वगैरह promote किया जा रहा है against their consent and all, so which is also from cyber crime. तो हमें एक तरीके से इन कंपनीज पे भी एक्शन लेने की नीड है. तो जो आपका प्रोविजंस आए हैं रिसेंटली लॉज, हम लोग उनकी यहाँ पे बात कर सकते हैं, टैकल दिस इशू. एंड फाइनली वी कैन से there need to be more collaboration with the academic and research institution so that overall we can strengthen our capability, right? So DRDO या फिर जो आपके बाकी bodies हैं उनको हम लोग किस तरीके से on board ला सकते हैं. Such points can also be written in this. ये आपको समझ में आया कि how we can apply this stakeholder based approach to generate more points here. ठीक है, हमने पहले देखा कि भाई what were the driving factors, फिर हमने देखा स्टेक होल्डर्स. थर्ड जो क्वेश्चन हो सकता है, इट कैन बी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी थ्रेट. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा है एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय द एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ये चैलेंजेस पूछ रहा है कि क्या पोज करते हैं, विच इज बेसिकली इम्पैक्ट, राइट. तो ये अगेन वी कैन मेक सम जेनरिक लिस्ट हियर. कि politically it might lead to demand for secession. Okay, for example, insurgency in Jammu and Kashmir, insurgency in Northeast. It can weaken our national integrity. It can have revenue and financial losses. Because for example, मान लीजिए आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, आप लेट्स से माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपके रेवेन्यू लॉसेस होते हैं. इट कैन रिवर्स द डेवलपमेंटल गेन. तो फॉर एग्जाम्पल, आपके जो नेक्सलाइट्स होते हैं, they target the public infrastructure. That's how it can lead to reversing developmental gains. It can become difficult to build the infrastructure. It can lead to social polarization and division within the society.
It can lead to caste, class and religion based divides. Directly loss of life and property हो सकता है. यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं both of the civilians and also for the security forces. It can damage critical infrastructure, our data. So for example, again cyber warfare वगैरह के कारण जो है critical infrastructure को डैमेज हो सकता है, या फिर जो स्टेट एक्टर्स हैं लाइक पाकिस्तान, so when they engage in kinetic conflict with us, it might damage our critical infrastructure like airfields. उस तरीके से हम लोग बता सकते हैं. It can also lead to internationalization of issue. For example, our Kashmir issue during Operational Sindoor, we saw that there was an attempt to internationalize the issue. So this is the impact of any kind of threat which is there. So these 10 generic points again we can remember and use it across the answers. आप देख सकते हैं कि जो सारे पॉइंट्स है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था ये बहुत जेनरिक था. दे आर सिंपली आस्किंग की challenges of both external and non-state actors on the internal security. तो ये पॉइंट्स लिख के इसके सामने जो एग्जाम्पल्स हैं ये वैरी करवा सकते हैं. कहीं पे आपने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दे दिया, कहीं पे आपने रूल ऑफ पाकिस्तान बता दिया, कहीं पे आपने LWE की बात कर दी, कहीं पे नॉर्थ ईस्ट की बात कर दी, कहीं पे साइबर क्राइम की बात कर दी. बट जो पॉइंट्स हैं हमारे दिस कैन रिमेन द सेम ईयर. एग्जाम्पल चेंज कर. ठीक है. अगेन नेक्स्ट अप्रोच हियर कुड बी, basically it is overlapping with the stakeholder based approach, with what is the support system for any kind of internal security challenge. Support system can be people, so externally also, internal actors also. The role of NGOs, role of overground workers, role of finance हो सकता है, terror and crime funding, weapon supply chains, safe havens, domestic as well as cross border, role of information networks, technology platforms का role, ideological indoctrination. They can be frontal organizations like NGO universities. They can be cross border linkages, organized crime nexus हो सकता है. Basically these are the support system help strengthen any kind of your जो है इंसर्जेंसी. अब इन पॉइंट्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आता है क्वेश्चन आपका, लेट्स से प्रोवाइड अ वे फॉरवर्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी. मान लीजिए ये क्वेश्चन, राइट. अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं सारे वी कैन ट्राई टू फिट इन दिस आंसर. फर्स्ट वी कैन से एट द पीपल लेवल वी नीड टू गो फॉर action against the overground workers, people who are indoctrinated in the let's say terror ideology. तो उन लोगों पे हमें एक्शन लेना चाहिए. either we need to arrest these people, finding and arresting, उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग का रोल होगा, वो सारी चीजें होंगी. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी कैन राइट. एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रोवाइड जो है बेसिकली टीम्स होती हैं रिहेबिलिटेशन वगैरह की, हमें वो सब प्रोवाइड करना चाहिए. एट द लेवल ऑफ पीपल विनिंग हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटेजी हो सकती है ताकि वी कैन रिमूव द ग्रीवेंसेस. वी नीड टू टैकल द रोल ऑफ फाइनेंसेस. टेरर फंडिंग जो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको हमें रोकना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ सस्टेनेंस ऑफ टेररिज्म. वी नीड टू टैकल द वेपन सप्लाई चेन्स. जो वेपन्स आपके क्रॉस बॉर्डर उसके थ्रू आते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू आते हैं, या फिर जो ड्रोन्स का यूज करके आते हैं, वी नीड टू स्टॉप दैट. टेक एक्शन अगेंस्ट सेफ हेवन्स. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो ऑपरेशंस करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर टू डिस्ट्रॉय अवर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर. So here we destroyed the safe havens of terrorists inside Pakistan. This is another step which we can write. Tracking down on the information networks. Regulating social media. जैसे आपने सुना होगा कि बुरहान वानी प्रोटेस्ट के टाइम पे people were basically called for the protest and all using these social media platforms, right? तो हमें उस पर भी एक तरीके से एक्शन लेना होगा. We need to go for ideological warfare also with these terrorists. The role of ideological indoctrination, the role of, let's say, educational institutions, media, inculcating the nationalist ideology, spreading the nationalist ideology among the vulnerable population. तो हमें जो है जो है आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर पे भी काम करना है. Tracking down on the frontal organizations like NGOs, universities, these steps can be taken. Identifying and following the cross-border linkages at the level of, let's say, UN वगैरह के लेवल पे हम लोग जाके एक्सट्रेडिशन वगैरह के रिक्वेस्ट करें ऑफ द कन्विक्टेड जो है टेररिस्ट. एंड वी नीड टू ब्रेक द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस विद द टेररिज्म. सो दैट्स हाउ वी कैन यूज these points in the answer way forward for Jammu and Kashmir.
सेम थिंग नाउ वी कैन सी फॉर द वे फॉरवर्ड. तो अगेन किसी भी चीज का वे फॉरवर्ड है, आई हैव प्रिपेयर्ड थीम वाइज पॉइंट्स हियर विच वी कैन यूज. मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टेप्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट एलडब्ल्यूई. या मान लीजिए पूछते हैं कि व्हाट स्टेप शुड द गवर्नमेंट टेक टू एलिमिनेट एलडब्ल्यूई. हम लोग हमारा जो स्टेप्स होंगे, वे फॉरवर्ड होगा, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. दैट फर्स्ट वी कैन से व्हाट शुड बी द इकोनॉमिक स्टेप्स, पॉलिटिकल स्टेप्स, सोशल स्टेप्स. गवर्नेंस लेवल पे क्या स्टेप्स लेने हैं, सिक्योरिटी के लेवल पे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या स्टेप्स लेने हैं, एंड इंटरनेशनल लेवल पे. तो ये 6-7 ब्रॉड डायमेंशन हम लोग ओपन कर सकते हैं इन आवर वे फॉरवर्ड. लोगों के लेवल पे क्या स्टेप्स ले सकते हैं, पीपल इन कम्युनिटी. नाउ हियर इफ वी सी, so in each of these heads, so we can remember few points so that we can write. तो अगेन सेम क्वेश्चन देखें कि एलडब्ल्यू के लिए हमें क्या स्टेप लेना है. तो फर्स्ट वी कैन से दैट वी नीड टू गो फॉर इकोनॉमिक पावरमेंट ऑफ द पीपल टू रिमूव पॉवर्टी एंड देयर इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस. तो वहां पे हमें लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वी नीड टू इंगेज यहाँ पे हेल्थ केयर एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन प्रूव करना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो हमने 4-5 पॉइंट्स यहाँ से लिख लिए कि इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. अब बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि वी कैन प्रमोट लाइट इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग, जो है हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को कॉन्करेंट लिस्ट में ला सकते हैं, डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो ये बेसिकली आपके हो गए इकोनॉमिक एंगल के पॉइंट. हाँ, these points which I have ticked, this we can apply in your LWE. Now even decentralization of power, this thing also we can write under this LWE, basically empowering Gram Sabhas, implementing FRA, right? ये सेम अगर देखें, अगर गवर्नेंस की बात करते हैं, what steps we can take, what governance reforms can be there. So we need to go for police and judicial reforms so that we can address the people's grievances directly. We need to go for accountability of NGOs because most of these NGO funds, etc., they go towards supporting nationalism and extremism in our country. NGO accountability, है ना. इंटरएजेंसी, इंटरस्टेट, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना पड़ेगा. Strengthening the local self-government bodies, so actually implementing your FRI. So these points again we can write in our governance part. Others point you can see, और क्या लिख सकते हैं, कुछ keywords आप देख सकते हैं यहाँ पे. Vulnerability assessment हम लोग कर सकते हैं. We can identify the areas जहाँ पे there is more likelihood कि LWE spread करे for this question, and we can focus our efforts towards those particular districts and villages, right? थर्ड वे फॉरवर्ड कुड बी सिक्योरिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं. तो इसमें हम लोग बता सकते हैं, अगेन कुछ पॉइंट्स देखें. वी कैन बैन सम ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज अंडर यूएपीए. वी कैन go for day and night area domination. We need to go for modernization of security forces. And we need to seize the terror finance. There is this clear hold, develop strategy. है ना. अगर नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है, we need to go for gradual withdrawal of AFSPA also. Improving the intelligence sharing mechanisms. Establishing special security zones across the state borders, जहाँ पे एक तरीके से coordinated way में we can take action. So these identifying the strategic supporters. There might be some frontal organizations for LWE, कुछ NGOs, कुछ intellectuals, कुछ academic institutions which might be strategically supporting them. So we need to identify and take action against them also. These points can be under the security head here. Okay, next अगर देखें, टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या कर सकते हैं फॉर LWE. तो अगेन कुछ जेनरिक पॉइंट्स विच वी कैन राइट फ्रॉम हियर. तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, सबसे पहला इंप्रूविंग आवर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस. सेकेंड, उन दोनों को इंटीग्रेटेड वे में हमें यूज करना पड़ेगा. मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को वी टू टैकल, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग से जो है द फंड्स माइट बी यूज्ड फॉर योर टेरर फाइनेंसिंग, योर LWE फाइनेंसिंग. यू कैन गो फॉर ड्रोन सर्विलांस एरियाज वेयर द एक्सेसिबिलिटी इज डिफिकल्ट. ये CCTV इंस्टॉलेशन हम लोग बोल सकते हैं, लेजर फेंसिंग हम लोग कर सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हो, जेनरिक पॉइंट्स यूजिंग अदर आंसर्स, बट फॉर दिस आंसर वी कैन अप्लाई दीस पॉइंट्स. द लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल हम लोग क्या कर सकते हैं. तो FATF का कंप्लायंस इंश्योर करें ताकि जो क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट मिल रहा है लेट्स से LWE को फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, दैट कैन बी स्टॉप्ड.
यूएनओडीसी लेवल पे कॉपरेशन हो सकता है कि सोशल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की नीड है ताकि प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज टू स्प्रेड द नेक्सलाइट आइडियोलॉजी. अगेन मोर पॉइंट्स यू कैन सी इंटरपोल कोऑर्डिनेशन. अगर जो नेक्सलाइट लीडर्स हैं दे हैव माइग्रेटेड या फिर दे हैव शिफ्टेड टू लेट्स से बांग्लादेश to escape the security forces, then we can go for your Interpol collaboration also. So again, such points can use the international domain. People, लोगों के लेवल पे क्या किया जा सकता है? So we need to cultivate our people as eyes and ears. Basically, जो human intelligence है ना, this can be best when people themselves are the eyes and ears for the forces and the government. Winning hearts and mind strategy. So actually implementing the scheme, developmental activity, ताकि हम लोगों के दिल जीत सकें. That is the idea. We can go for witness protection programs, combating the misinformation against the Indian state. Let's say promoting digital literacy वगैरह, cyber hygiene. तो ये कुछ points हैं, आप देख सकते हैं, which we can use the level of individuals and communities fight the LWE. तो in this video we have discussed that जितने भी components आते हैं आपके internal security में, what are the issues, what are the challenges, what are the stakeholders, what is the way forward, इन सब चीज़ों को हम लोग एक fixed template में आंसर कर सकते हैं. And since the idea in GS3, as I have said earlier also, to write more number of points, we have this generic template prepared. We can apply this template in any answer which is being asked. We can just change the examples which are there, right? So I think this content will help you. You can pause at different points and just take the screenshot and write down these generic points. I think this will help you in scoring good in your internal security part of GS. Thank you.